Dear friends and students, in our previous lecture, we have discussed what is the Tenancy Act 1955, how was it passed, what is the purpose of this act to be made, and what is the formation of act, main features of act. Now we shall discuss what facilities were given by this act to the tenants, because it is main Tenancy Act, and benefits of tenants were given by this act. First one, this act was given a special benefits and provisions for backward classes. Persons belong to the scheduled castes and scheduled tribes. As per section 42 of the act, they cannot transfer their land to higher castes, and the castes not belonging to the scheduled tribes and scheduled castes. It may also be considered that the Supreme Court of India in 1913 gave a decision, State of Rajasthan versus Anjay Organic Herbal Private Limited AIR 2013 2013, that the juristic person is also includes in the persons. Here juristic persons means, what do we mean by juristic persons? Juristic persons means a person who is not really a person but has been made person by the law. Jaiसे corporation, as corporations, companies, these are all known as a juristic person. The court decided that land cannot be transferred even to the juristic persons. They are also included as a person. It was the first. Secondly, Rajasthan state and vice versa, Veer Friendship Solar Park Private Limited, Rajasthan High Court decided that the act was as per constitution. It means the act was a constitutional. It was challenged in the court that this act is not a constitutional, against the provisions of the constitution. But the Rajasthan High Court gave decision in 1312 that it is a constitutional act. Now we think we have discussed that land cannot be transferred by sale, by bequeath, by gift, or any way to other person than the persons belonging to the scheduled caste and scheduled tribes by a person of scheduled caste and scheduled tribes. Second feature of the act is that it has given a primary rights to the peasants. First primary right is right to house for residence. What do we mean by right to house for residence? It means a person to whom the land has given has a right to make the house on that land. However, his real right is of a tenancy. It means he can do agriculture on the land, he cannot reside on the land, but this act has provided that right to live and make house is also given to the tenants. Right to records and written pattas. Secondly, when a tenancy act has been given, then it was made necessary that pattas will be given in a writing to the tenant, and there may be kept by the government record. गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड रखेगी और उसको जो है
लिखित में पट्टा देगी। थर्ड जो है राइट टू सर्टिफिकेशन इन प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पट्टाज। इसका अर्थ व्हाट डू मीन बाय रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन? रजिस्ट्रेशन मीन्स getting registered the patta under the Act, Registration Act 1908. It has to pay registration fees and other fees also. But in a case of allotting the land under this act to the tenants, it was made that certification of the patta is necessary, no need of getting registered the pattas, so that peasants may be saved from the, tenants may be saved from the extra expenditure for which they are not capable to do extra expenditure. Prohibition of premium and begar. Begars, what is begar? Begar means any work got to be done by the any person from tenants. tenants से कोई भी ऐसा काम करवाना जिसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाए. Getting work done without giving any consideration, this is known as a begar. This was the system. Before the independence, tenants were doing every begar of the administration of village, of Suba, and of state and even center. This begar was banned and no premium was given for the patta which were issued to them. Prohibition of payment of different from that of rent. Secondly, Tenancy Act give the power to do agriculture. No payment is to be done to the government except the rent and revenue. And right of use the material in the village, in the fields, in the agriculture fields, such as forest, trees, etc., soil, any type of the mineral, short type of mineral, minor mineral, rocks, masonry stones, etc., may be used by the tenants for his own use at the field. Null bhat right. What is null bhat right? Null bhat right means any null well which is found his tenant area, and he may give that water of that null, that tube well to another persons, and may take rent for for exchange of that water. It is null bhat. इसलिए they were given the benefit of taking the consideration for null bhat. Prohibition or stay on confiscation, attachment and sale of such land by procedure of the court. This tenancy right was prohibited to be confiscated, make attachment and sale by the court or court orders or a decree. Protection from illegal eviction. It was a time that everybody may trespass his land and he was disturbed. Now he was given protection for illegal eviction. He cannot be evicted from the land only under the provisions of section 161. He may be evicted
according to the provisions of this Act. Right to improvement. In a section 65 and 78, chapter 7, he may improve his land, and even state government may, if holding the land, may improve that land. This right has been given. Improving means abolishing the bushes and other problems on the land, for improving the cultivation of the, improving the cultivating purposes and other purposes also, which is allowed under the provisions of this Act. And surrender, amendment and extinction under 55 and 64. Provisions of 55 to 64 has been made. He may surrender, abandon and extinct the land as per provisions of these sections of the Act. Declaration has been made different classes of tenants. The other forum or feature of this Act that the various classes of the tenants has been declared, such as khatedar tenants, non-khatedar tenants, owner and self-cultivating holders. Owner means having some rights more than khatedar and non-khatedar lands, and different rights have been given to these different tenants. Apart from above, the other special features of the Act are as follow. इस एक्ट के और भी स्पेशल फीचर दी गई है, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन इलीगल रेंट, restriction on illegal rent, protection from trespassing, jurisdiction of revenue courts against trespassing, right of file declaratory suit or filing petition for injunction. Thus, Rajasthan Tenancy Act 1955 has proved a boon for socially and economically weaker classes. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स और लोगों के लिए भी ये लाभकारी सिद्ध हो सके। 3 फीचर्स मैंने आपको पहले बता दी थी कि इस एक एक्ट का बनाने का मतलब था कि पुराने सभी एक्ट को कंसोलिडेट कर दिया गया, एक यूनिफॉर्म एक्ट बना दिया गया। ज़मीन के जो अधिकार थे वो अधिकार सरकार के पास आ गए और सरकार उन अधिकारों को सब लीज या टेनेंसी के तहत किसानों को या दूसरों को देती थी। और जो मुख्य इन्होंने किसानों को भी खातेदार, गैर खातेदार, मालिक और ज़मीन को जोता के रूप में बांटे और उनको अलग अलग राइट्स दिए गए। ये मुख्य उनके इस एक्ट की फीचर थी। इसके अलावा कमज़ोर वर्ग को सहायता देने के लिए सरकार ने इसके अंदर अनेक दूसरी फीचर्स डाली तथा ये भी जो किसान थे, टेनेंट्स थे, खातेदार थे, उनको क्या क्या राइट्स होंगे ताकि शासन और सरकार उसको डिस्टर्ब नहीं कर सके, आम लोग उसको ज़मीन से बेदखल नहीं कर सके। अलग से राइट्स दिए गए और उनके कमज़ोर स्थिति का ध्यान देते हुए ये लाभ दिए गए। अब हम इन राइट्स को, इन फीचर्स को, इस एक्ट की को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो फीचर है वो स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न इस एक्ट के अंदर बनाए गए। स्पेशल प्रोविज़न सेक्शन 42 में दिए गए कि कोई भी SC ST की जो ज़मीन होगी वो ज़मीन दूसरों को नहीं दी जाएगी। बेचान से, गिफ्ट से या किसी प्रकार से भी उसको दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये ज्यूरिस्टिक पर्सन, लीगल पर्सन को भी अगर ये ज़मीन दी जाती है, ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब जैसे कंपनी, कॉरपोरेशन को भी दी जाती है तो उस पर भी ये लागू होगा। पर्सन में ज्यूरिस्टिक पर्सन भी इंक्लूड है, अर्थात कंपनी, कॉरपोरेशन, इनको भी ये ज़मीन नहीं दी जा सकती।
राजस्थान हाई कोर्ट ने माना कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। इसकी संवैधानिकता पर एक बार ये केस किया गया था, जिसका मैंने विवरण पहले इंग्लिश में कर दिया गया है। उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक्ट जो है ये संवैधानिक है। कुछ प्राइवेट प्रिलिमिनरी राइट्स जो है किसान को दिए गए ताकि किसान खेती अच्छी तरह कर सके। एक तो उसको घर बनाने का पूरा अधिकार दिया गया, दूसरा वो रिकॉर्ड ले सकता था और पट्टे भी रिटर्न में ले सकता था। पट्टे और रिकॉर्ड वो जो लेगा उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई प्रीमियम उसको नहीं देना है, न कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, केवल उसका सर्टिफिकेशन होना था, जो ये विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ही करती है। इस प्रकार उसको खर्चे से बचाया गया। और पहले जब किसानों से बेगार ली जाती थी, जिसका विवरण मैंने पहले कर दिया, उस पर बैन लगा दिया गया और इस पट्टे का कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता था। ये जो टीनेज था, जो किसान खेती करेंगे तो उसका केवल रेंट सरकार उससे ले सकती थी, रेंट के अलावा कुछ भी नहीं ले सकती। और खेतों में जो मटेरियल प्राप्त होता है, जैसे झाड़ी बोझे, ये आपके पेड़ पौधे, मिट्टी, मुर्रम जो ईंट बनाने के काम आते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को किसान अपनी यूज के लिए प्रयोग कर सकता है। ये नियम दिया गया। कई यहाँ तक कि मशीनरी स्टोन अगर खुदाई में निकलता है, कुआं खोदना है, तो इस पर जो कुएं में भी मशीनरी स्टोन निकल जाता है, तो वो भी अपने इस खेतों के डोली बनाने में, बाउंड्री बनाने में प्रयोग कर सकता है, वहाँ मकान बनाने में प्रयोग कर सकता है। ये सुविधा टीनेंसी एक्ट के अंदर दी गई। नाल भट्ट पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। नाल भट्ट कई जगह पहले, अब तो ट्यूबवेल जगह जगह हो गए थे, पहले बहुत कम ट्यूबवेल खेतों में होते थे, जो बैलों की जुताई से या दूसरे पशुओं की जुताई से जोत कर हम उसको पानी निकालते थे। उसको नाल भट्ट कहते थे। और वो नाल का मतलब पानी जिस धोरे से जाता है उसको नाल कहते हैं। नाल का मतलब जो हमने खोद के कुआं बनाया है और उसको पक्का चढ़ दिया जाता था, तो उसको नाल कहते थे। और उससे जो पानी जाता था, इस सिस्टम को नाल भट्ट किया जाता था। और नाल भट्ट का मतलब उसके बदले में दूसरे से अनाज या पैसे लेना, अपना पानी भार देने के लिए। तो वो अधिकार भी टीनेंट को दे दिया गया, जिनके टेनेंसी में ये नाल भट्ट, ये कुएं आए। दूसरा एक बात और है कि टीनेंस के ऊपर कोई कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर के द्वारा जो है उस टीनेंसी को कॉन्फिकेशन, अटैचमेंट, उसको खोसा नहीं जा सकता या उसको अटैच करके बेचा नहीं जा सकता दूसरे काम के लिए, या सेल नहीं किया जा सकता। केवल जो है रेंट के लिए ये अधिकार दिए गए हैं, जिसका मैंने पहले वीडियो में बकाया रेंट को वसूलने के जरूर अधिकार दिए गए हैं, जिसका मैंने पहले वीडियो में विवरण किया। इस प्रकार इलीगल इविक्शन नहीं कर सकता कोई भी आदमी या कोई भी सरकार टीनेंट को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकती। केवल एक्ट के सेक्शन नंबर 161 के प्रोविजंस के निर्धारित प्रोविजंस के आधार पर ही, प्रावधानों के आधार पर उसको बेदखल किया जा सकता है। राइट टू इम्प्रूवमेंट सेक्शन 65 to 78 के अंदर अपनी ज़मीन पर इम्प्रूवमेंट करने का अधिकार दिया है। इम्प्रूवमेंट का अर्थ समझते हो, खुद की ज़मीन या सरकार के पास सरकार की ज़मीन है, कोई भी अपनी ज़मीन पर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इम्प्रूवमेंट का अर्थ खेती में को इम्प्रूव करने के लिए आपने डोल बनवानी है, बाउंड्री बनवानी है, ट्यूबवेल बनवाना है, उस पर पेड़ झाड़ी जो बेकार के खड़े हुए हैं, जो खेती को नुकसान करते हैं, उनको काट सकते हो। और इस प्रकार इम्प्रूवमेंट करने की अधिकार जो है किसान को दिए गए, टीनेंट्स को दिए गए। सरेंडर अमेंडमेंट एंड एक्सटिंक्शन सेक्शन 55 to 64
सेक्शन 55 से 64 में प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी इस टेनेंसी एक्ट को छोड़ सकता है प्रोविजंस के अनुसार, त्याग के जा भी सकता है। छोड़ना सरेंडर सरकार को करेगा, उसके बदले में वो कह सकता है कि मुझे ये ज़मीन दूसरे कामों के लिए करनी है, तो सरकार उसको सरेंडर करके वापस वो ज़मीन दूसरे कामों के लिए कुछ पैसे लेकर इम्प्रूवमेंट, प्रीमियम चार्जेज इत्यादि वो दे देती है। अबेंडनमेंट कि जो व्यक्ति कुछ भी उसको अबेंडन करना चाहता है, न तो कुछ उसके बदले में उसको इम्प्रूव करवाना चाहता, न ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहता। इसका मतलब ज़मीन का रूपांतरण भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं कि भाई तुम अपनी टेनेंसी एक्ट अपने आप पास रखो, मैं नहीं रखना चाहता, उसको अधिकार है, वो छोड़ सकता है। एक्सटिंक्शन, उसको एक्सटिंक्ट भी किया जा सकता है। उसमें एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कैसे उसको एक्सटिंक्ट किया जा सकता है, उसको कैसे बेदखल भी किया जा सकता है। बेदखली के प्रोविजंस मैंने पहले ही बताया, सेक्शन 161 में भी इसमें दिए गए हैं कि कैसे उसको इविक्ट करवाई जा सकती है ज़मीन को। इसी प्रकार बेदखली के एक्सटिंक्शन के जो उसकी राइट ही ख़त्म हो जाए टेनेंसी के, उसके भी प्रोविज़न दिए गए हैं। जैसे टेनेंसी एक्ट के अनुसार वो उसमें खेती कर सकता है, खेती का लाभ बिना गवर्नमेंट की परमिशन और बिना रूपांतरण के वो दूसरे कामों में लेता है, तो गवर्नमेंट को पावर है कि उसके टेनेंसी एक्ट भी ख़त्म कर दे। इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। किसान को नाना प्रकार के भागों में बांटा गया, जैसे खातेदार टेनेंट, नॉन खातेदार टेनेंट, सेल्फ कल्टिवेटिंग होल्डर्स एंड ओनर्स, मालिक। खातेदार जिसका मोटेशन उसके पक्ष में खुल गया, नॉन खातेदार जिसका मोटेशन मैंने पहले डिस्कस किया जिसके पक्ष में नहीं खुला हो। ओनर्स वो मालिक हैं जो टीनेंसी की, उनके पास टीनेंट ज़मीन एज ए टीनेंट नहीं दी गई, या कुछ लोगों को सबलीज के ऊपर ज़मीनें दी गई थी गवर्नमेंट ने, उनको मालिक माना गया है। और एक सेल्फ कल्टिवेटिंग होल्डर्स होते हैं ज़मीन के, न उनके पास खातेदारी अधिकार होते हैं, न नॉन खातेदार अधिकार होते हैं, न लीज होती है। उनका विवरण मैं बाद में अलग से बताऊंगा, इससे ये क्या है, लेक्चर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अदर स्पेशल फीचर्स, इस एक्ट की दूसरी विशेषताएं, अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन इलीगल रेंट। इलीगल रेंट आप टेनेंट से नहीं ले सकते, गवर्नमेंट इलीगल रेंट नहीं ले सकती। जो नियम के अनुसार रेंट होगा वही रेंट लिया जाएगा। ये नहीं कि कभी कितना भी रेंट इन्हांस कर दिया, कितना भी रेंट किसी किसान से अधिक ले लिया, किसी से कम ले लिया। जो नियम कायदे होंगे, समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जारी होंगे, डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन जारी होंगे, और जो प्रावधान इस एक्ट के तहत किए जाएंगे उसी के अनुसार आप रेंट ले सकते हैं। ट्रेस पासिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेस पासिंग, किसान को ट्रेस पासिंग का भी प्रोटेक्शन दिया गया है इसके अंदर, कि कोई दूसरा आदमी इनकी ज़मीन पर ट्रेस पास नहीं कर सके। अर्थात ये जो टेनेंसी एक्ट है उसमें पोजीशन होल्डर टेनेंट को माना गया है, और पोजीशन होल्डर जो कब्जाधारी है, अगर कब्जाधारी की ज़मीन पर कोई दूसरा आता है तो नियम के अनुसार ट्रेस पासिंग का दोष उस पर लगता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, टोर्ट्स के अंदर भी चलाया जा सकता है, और जो दूसरे आईपीसी के कानून है उसके तहत भी चलाया जा सकता है। क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, दोष का भी हो सकता है। इसी प्रकार ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स अगेंस्ट ट्रेस पासिंग, ये भी हमें देखना है कि ये जो ट्रेस पासिंग की जो है, ये केस कौन सुन सकता है, कोर्ट सुन सकती है। कोर्ट जैसे ट्रेस पासिंग आईपीसी के अंदर, सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट सुनेगी आईपीसी के अंदर, और टोर्ट्स के अंदर सिविल कोर्ट सुनेगी। परंतु ये मुख्य अंतर ये है कि टेनेंसी होल्डिंग की जो ट्रेस पासिंग है, उस ट्रेस पासिंग के विरुद्ध रेवेन्यू कोर्ट भी केस को सुनाई कर सकती है। यही महत्वपूर्ण इसमें बात है। राइट टू फाइल ए डिक्लेरेटरी सूट एंड फाइलिंग ए पिटीशन फॉर ज्यूरिसडिक्शन। अब
ये सब तो उसको ताकत दे ही नहीं। इसके अलावा वो अगर कोई उसको ट्रेस पास करता है या उसको लगता है कि उसके राइट्स पर कुठाराघात हो रहा है, उसके टीनेजी राइट्स पर कुठाराघात हो रहा है, तो उसको अधिकार है कि वो उसके लिए डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता और स्टे भी मांग सकता है। फाइलिंग पिटीशन फॉर इंजेक्शन लगवाने, इंजेक्शन का मतलब किसी स्टे, बैन, उस आदमी को रोकना जो उसको उसके अधिकारों का हनन कर रहा है। कोर्ट थोड़ा सुन के ही स्टे दे देता है कि अभी यथा स्थिति रखी जाएगी और आगे नहीं बढ़ा जाएगा और कोर्ट अपने डिसीजन देगा या जब तक का ये स्टे रहेगा और इसी प्रकार ये जब तक फैसला नहीं होगा इसी प्रकार से यथावत स्थिति चलती रहेगी। तो आपने ये सब बातें अच्छी तरह समझ ली कि ये कितना महत्वपूर्ण एक्ट है और मैं समझता हूँ कि आपकी बात पूरी समझ में आ गई होगी। नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई रिक्वेस्ट यू टू share my video to the maximum people and subscribe video so that I may be motivated and I may also upload other video। आप ये ध्यान रखिए, ये मैं कोई किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता नहीं हूँ, कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ और मैं खुद भी ला कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जो लैंड एक्ट्स हैं ये मेरे ऑडिट के विषय रहे हुए हैं, इनमें मेरी अच्छी पकड़ है। तो मैंने सोचा कि जो लैंड एक्ट्स हैं उनके मैं वीडियो अपलोड कर दूं जो मैंने जीवन भर जिनको काम लिया है तो स्टूडेंट्स के काम आए। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये आपको लाभपूर्ण हो। इसके अलावा आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे बनवारीलाल यादव के नाम से एक चैनल चल रही है। जैसे ही लाइब्रेरी में जाओगे यूट्यूब पे बनवारीलाल यादव के नाम से चैनल है, उसमें अन्य वीडियो हैं योग, ध्यान, मेडिटेशन तथा शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, श्रवण शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, बुढ़ापे में भी क्रियाशील आदमी कैसे रह सके, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब मेरे जीवन के अनुभव के मैंने नाना प्रकार के वीडियो उसमें अपलोड किए हैं जो एक व्यक्ति को कुछ बढ़ने में कामयाब होते हैं और अगर वो हतोत्साहित हो रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, अगर उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है तो वो मोटिवेट हो जाएगा और उसका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए आप YouTube पर जाकर उन वीडियोज़ को भी सुनिए ताकि आपको अति लाभ हो सके। धन्यवाद। हो सकता है मेरी आवाज़ और मेरी भाषा में कुछ ऐसा फ्लो नहीं हो जो ट्रेंड टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, पैसे लेकर पढ़ाते हैं और उनका डेली का काम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिए ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।